Hi everyone, welcome back to Mixed Methodology TV. I'm Tanjung Gopal. I'm sitting here with artist Satya Narayan, right? And we are currently here in the Subway studio. He is one of the artists again doing artist residence, right? And so thumbs up to the Subway studio and Shubhankar. Subhakar, for allowing us to have this session. And if you have not listened to other artists' podcasts who are also participating in the Subway Studio, I would suggest you to also have a listen there because there's tons and tons of things to listen. So, without much ado, let's get into the conversation with the artist himself. Satya Narayan, can you please introduce yourself a little bit? Hello, hello everyone. I am Satyanarayana Gavara. I am from Andhra Pradesh. My studies from Andhra University, Andhra Pradesh in printmaking, graduation, and later. He seems a little nervous, I think, right? So take a deep breath and you can like relax and talk about, yeah. So you're from Andhra? Yeah, Andhra Pradesh. Okay. Actually, I am from Narayanpuram. Okay. It's a rural village in Andhra Pradesh. So 5 hours far from 5 hours journey far from Visakhapatnam. And later I did my masters in MS University. Duration period is 18 to 20. Okay. So I mean like, so if I like how much I got to know is like you did your bachelor's also in graphics, right? yeah, And like a lot of the universities in around India, they don't actually allow, they don't have like bachelor main programs for specialization. like for graphics. That's usually normally more into the master's program, na. Yeah. So Vishwakapatnam mein you did your bachelor's also Yeah. fully in printmaking. There we have main specialization. Okay. It's like in India, some colleges have main specialization. Okay. Like Santiniketan, Kerala, Okay. Nagpur. So those colleges have. So how did you, like if you're comfortable talking in Hindi, we can also do that. If you're also comfortable talking in English, we can also English भी बात करना है तो भी वो भी हो सकता है. अपने आप को ये constrict मत करना. जैसे आपको अच्छा लग रहा है express करने में, use that language. I'm sorry, I don't know Andhra's language. Otherwise, I'll definitely like. So how did you get into like art? Like, what about your family? Like, were they supportive or how did you get to know like कि fine arts है यार कुछ? Before I came this world, I don't know about fine arts. इसमें कुछ ज़्यादा ये फील्ड में ये इतना जर्नी है ये सब पता नहीं है. 18 years पहले. So actually I was interested in drawing, painting. Okay. So drawing बनाना बचपन से ही बहुत शौक था. ये बनाता था. After that I'm trying to get into pharmacy. Like Pharmacy? yeah. Like doctor or no, in medicine? Medicine. Whoa. आफ्टर एमसेट लिखा था उसके बाद में वो ट्रायल्स में था तो अचानक से Why pharmacy? This is very like वो भी interesting है. एक्चुअली प्लस 2 में मेरा बाईपीसी था. Okay. सो वो बाईपीसी भी इसीलिए लिया, मैथ्स मेरा डर है मेरे को. Okay. सो उसमें ड्राइंग्स भी होगा ज़्यादा. हाँ. तो इसलिए बाईपीसी में गया. ड्राइंग्स बना सकते हाँ हैं. बायोलॉजी में ऐसे बायोलॉजी वो एनाटॉमी में सब ड्राइंग्स होता है ना इसलिए. फिर वो ट्रायल्स में था. अचानक से एक दिन मेरा सर ने देखा था तो मेरे को बुलाया. मतलब मैंने गया तो मैंने बोला नमस्ते सर. तो उन्होंने कहाँ गया तेरे को 2 साल से मैं ढूंढ रहा हूँ, मतलब पता नहीं है, तेरा कॉन्टैक्ट नहीं है मेरे पास. This is your school teacher? Yeah, he is my school teacher. Okay. So he suggested me to go Andhra University. Okay. तो उधर फाइन आर्ट्स ऐसे है तो इफ यू गेट एडमिशन एंड तो 2 साल कहाँ गया था? उधर ही प्लस 2 पढ़ रहा था. प्लस 2 पढ़ रहा था तो तुरंत मैं अगले दिन ही गया था. एक्चुअली वो बोल रहा था
तो तुमको मास्टर मतलब डिग्री होने के बाद तुमको कुछ जॉब आ जाएगा, कुछ स्कूल में श्री चैतन्य वगैरह बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स है, तुमको ले लेगा, 10-15 हज़ार सैलरी मिलेगा, तो बहुत आगे बढ़ जाएगा तुम बस। ओके। हाँ, तो मैंने वो सोच के फिर मतलब ऐसा सजेशन दिया, बट मेरे को भी इतना वही जगह जा रहा हूँ, उधर आंध्र यूनिवर्सिटी में सीट मिलेगा, तो ये सब सोच के फिर अगले दिन मेरा ब्रदर को और मेरा लैंडलॉर्ड को लेके गया था। ओके। सो तुरंत एडमिशन मिला, ओके, कुछ प्रोसेस में मिल गया। ओके। फिर उस टाइम पहली बार मैं मेरा रमेश सर है, चरण सर है, सबको देखा, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया ऐसा जाने एडमिशन, उधर हेल्प किया था, तो एडमिशन हो गया। तो फिर उधर कुछ वर्कशॉप चल रहा है उस टाइम, तो वर्कशॉप्स देखा, फिर मैं बहुत घबरा हो गया था, मतलब सब लोग इंग्लिश बात कर रहे हैं, मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, फिर तेलुगु मीडियम है, तो कैंप चल रहे हैं, बहुत घबरा में हो रहा है सब कुछ। मैं घबरा हो गया था, 2 दिन रुका, देखा, फिर वापस चले गया, अगर सब लेके चले गया। फिर मेरा ये कैंप क्या आर्ट का कैंप था या कुछ बायोलॉजी का रिलेटेड का कैंप है? ये आर्ट का कैंप है। आर्ट का कैंप है। हाँ, आर्ट का कैंप। Guys, I think see this is monsoon time, number one, so everything is very humid, and number two, because we are now doing this session live in artist studio itself, there's a lot of constructions happening in around. We have some child crying in the background, so please don't mind. I'm going to switch on the fan also because I see Mr. Satya Narayan is like sweating. So I'm just going to switch on the fan. It can like maybe cause a little disturbance in the conversation, but don't worry, we are going to speak a little louder, right? I'm just going to कर लेता हूँ, नहीं तो भाई साहब का ये हो जाएगा। इसे ऊपर वाला या I think this is one more. Let's begin. Okay. So ये तो मैं बाद में कट कर लूँगा, कोई टेंशन नहीं। So art camp. Yeah. So that was your first art camp then. मैं पार्ट नहीं है उसमें, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द आर्ट कैंप। Okay. बट वो कुछ स्कल्पचर कैंप, पेंटिंग कैंप ऐसे कुछ हो रहा है, तो वो कुछ कमर्शियल टाइप का। तो घबरा हुआ कि 2 दिन के बाद मैं सब कुछ सामान पैक करके चले गया वापस, बिना बोल के, मतलब मैं सब कुछ पैक करके आ रहा हूँ, मुझे पढ़ना नहीं है। मतलब तुम कॉलेज गए थे, फिर तुझे ऐसे हो गया कि मुझे नहीं पढ़ना है, हाँ, वापस आ रहा था। दैट इज फर्स्ट टाइम मैं गांव से बाहर फर्स्ट टाइम जा रहा था। ओके हाँ, ओके बहुत ओके। घबरा हो गया मेरे को, मेरे भैया ने छोड़ा ना उधर, एल्डर ब्रदर, तो छोड़ने के टाइम मैं रो रहा था, मतलब मुझे छोड़ के जा रहा है। फिर पहले दिन मैं जब उठ के देखा, बाजू में पानी गिरता है, वाटरफॉल जैसा लगता है। ओके। एवरी मॉर्निंग पानी गिरता रहता है, तो मुझे लगा दूसरा वर्ल्ड में आया। तो पहली बार है ना, तो मुझे लगा अरे यार इधर 4 साल इधर कैसे जीऊँ मैं, ऐसा ओके। हो गया था। फिर चले गया था 2 दिन, फिर घर पे फील्ड्स में लेके गया, तो समझाया अच्छे से, तो इतना पैसा भर दिया तो वापस नहीं आएगा, फिर तुमको इतना मुश्किल से एडमिशन मिला, तो कुछ भी कर ले, ये सब छोटा छोटा मुश्किल से आगे ये अच्छे से समझाया तो पेरेंट्स ने। तो फिर आफ्टर 2 days मैं वापस गया, मेरा भाई ने छोड़ के फिर वापस चले गया था। फिर उसके बाद 2-3 बार हर हफ्ते में जाता था। 3 महीने के बाद फिर गाड़ी नहीं गया मैं। ओके। 3 महीने के बाद फिर आदत हो गया फ्रेंड्स के साथ, फिर मैं अकेला घूमता था ज़्यादा। तो उस वक्त ऑलरेडी लाइक तो तुम्हारा जो टीचर तुझे सजेस्ट किया था कि यू नो यू शुड गो जॉइन गेट अ डिग्री बिकॉज यू गेट अ जॉब, सो वर यू लाइक जॉइनिंग बिकॉज व्हाट यू गॉट एडवाइस्ड, या ऐसा भी था कि मतलब मुझे भी करना है इसलिए मुझे जाना है? कैसा था? लाइक पेरेंट्स का भी रिएक्शन होगा ना, लाइक कि कैसे था वो लोग का वो थाट है, बट मेरे को तो मैं इससे बनने जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। Okay. और ड्राइंग में भी इंटरेस्ट है, तो जॉब का मुझे इतना कोशिश नहीं था, बट मेरे को जो फील अच्छा है ना उसमें जा रहा हूँ, अच्छा है। तो उन्होंने जो बात बोला ना वो भी मोटिवेशन लगा, तो फिर गया मैं।
ऑलराइट। हाँ। तो स्कल्पचर और ये सारे इतने सारे ऑप्शंस तुमने देखा लाइक व्हेन दैट कैंप वाज हैपनिंग, तो कहाँ से तुझे ये लगा कि यार प्रिंट मेकिंग शायद मेरे लिए है? डिड प्रिंट मेकिंग प्रोसेस अट्रैक्ट यू या यू अट्रैक्टेड? ऐसा होता ना काफ़ी बार। दोनों में ही है। ओके। एक्चुअली पहली बार मैं प्रिंट मेकिंग किया ना, सबमिशन के लिए होता है ना, इतना काम चाहिए, Okay. नहीं तो फेल कर देगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा लेट गया था, 1-2 महीना। फिर उस टाइम मुझे लगा कभी मैं प्रिंट मेकिंग करूँगा ही नहीं। Okay. लेकिन मैं स्पेशलाइजेशन पेंटिंग और स्कल्पचर लूँगा, प्रिंट Okay. मेकिंग में जाऊँगा नहीं। तो फिर धीरे धीरे प्रिंट मेकिंग थोड़ा बहुत अच्छा करने लगा, मतलब इतना भी अच्छा नहीं है बट ओके, कर रहा हूँ। कोई लेना नहीं चाहता है, मतलब nobody am interested to go in print making। ओके। तो मेरे को सर ने थोड़ा मोटिवेशन किया है, मतलब इधर आ जाओ, अच्छा तेरा काम भी अच्छा है, वो लोग ऐसा लगता है मुझे थोड़ा खींचा है, बट फाइनली इट वाज गुड फॉर मी। फिर मैं अकेले था सेकेंड ईयर में। So you are the only student in Yeah. the printmaking department, like. हाँ, फॉर 6 months मैं अकेला था। लेटर माय फ्रेंड अशोक बास्की वो भी साथ में ज्वाइन हो गया, Okay. तो हम दोनों ही थे। आफ्टर दैट सेकेंड ईयर से फिर तभी एक मतलब एक एम था मेरा, सीनियर्स को देख के Okay. इंस्पायर होके बड़ौदा में एडमिशन लेना है। Okay. तो वो ऑटोमेटिक ऐसा आ ही गया, मतलब बड़ौदा सब लोग जा रहे हैं तो ओके बड़ौदा जाएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। मतलब तो फिर उस वक्त तुम्हारे लिए लाइक यू नो द वर्क दैट यू आर डूइंग, जिस तरह से तुम काम कर रहे थे और जो इंटरेक्शंस हो रहा था दूसरे आर्टिस्ट जो सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उस वक्त का क्या सीन था? लाइक हाउ वाज इट लाइक? क्योंकि तुम बोल रहे हो ना अभी जैसे कि प्रिंट मेकिंग में तुम अकेले थे कुछ टाइम के लिए एंड देन यू हैड अ फ्रेंड कमिंग इन, राइट? तो तब तो मतलब बाकी जो डिपार्टमेंट में है उसमें भी थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे ना, तो कैसे इंटरेक्शंस होता था वो? थोड़ा उस चीज़ के बारे में। हाँ, मतलब काफ़ी दूर नहीं है, बाजू बाजू में है ना, सब लोग मिलके ही मतलब काम तो अलग से करते हैं बट डेली इंटरेक्शन होता है ना, इंटरेक्शन होता है। फिर हमारा सीनियर्स के साथ ज़्यादा रहते थे, और जो भी सीखा सीनियर से ज़्यादा सीखा। Okay. मोस्टली सीनियर से ही टेक्निकल स्किल्स, जो भी बाहर का बात और फ्यूचर में क्या करना होता है और वो सब बाद में सीखा। तो Okay. इसलिए फन में था। Okay. ठीक है चलेगा। सो जो भी सीखा सीनियर्स ने अच्छे से सिखाया, वो लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया, जो भी मटेरियल सब होता है वो सब काफ़ी हेल्प हुआ था उन लोग से। So, मतलब प्रिंट मेकिंग में फिर क्या स्क्रीन प्रिंटिंग से लेके ये सारे जो भी अलग अलग टेक्निक्स है वो सब लाइक सिखाया जाता था या लाइक हाउ वाज इट लाइक यू नो? अब देख जैसे कि हम जब MSU में ज्वाइन किए थे, ओके, मुझे तो कुछ पता नहीं था स्कल्पचर क्या होता है। मैं मतलब घर पे केक वेक बनाता हूँ, बेकिंग वेकिंग मुझे बहुत पसंद है, तो मैं करता हूँ ऐसे खाना वाना के साथ और ऐसे सब चीज़ों के साथ मैं बनाते रहता हूँ, बट आई नेवर लाइक सोचा कि इसको स्कल्पचर बोलता है या फूड स्कल्पचर बोलता है या ऐसा, ये आइडिया नहीं था। आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क लाइक विद मड एंड ऐसे ऐसे। तो मैं जब इधर आया तब मुझे रियलाइज़ भी हुआ कि यार ओह डैम, लाइक देयर सो मेनी थिंग्स वी कैन डू स्कल्पचर में भी, और उसमें प्रिंट मेकिंग भी वन ऑफ द लाइक टेक्निक, लाइक यू नो, क्योंकि मुझे ड्राइंग भी उतना ही पसंद है। तो कभी ना तो लाइक स्कल्पचर भी कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि यार प्रिंट मेकिंग का जो प्रोसेस है, लाइक आई हैव ऑलवेज बीन लाइक कनेक्टेड वेरी मच, बिकॉज वो एक ड्राइंग ओरिएंटेड अप्रोच रहता है ना, ऑफ कोर्स विद पेंटिंग ऑल्सो, बट द प्रोसेस ऑफ लाइक इंटरेक्टिंग विद मटेरियल, उसका इम्प्रेशन लेके दूसरे चीज़ के ऊपर काम करना, ये मुझे बहुत सही लगता था। तो उस तरीके से मैं आपको पूछ रहा हूँ लाइक कि यू नो देन हो सकता था तुम स्क्रीन प्रिंटिंग में ही काम कर रहे, हो सकता है कि यू हैव डन एचिंग ऑल्सो, सो वी जस्ट वांट टू नो लाइक कि क्या एक्सपीरियंसेस था व्हेन यू नो लाइक व्हेन यू आर डूइंग एचिंग, व्हेन यू आर डूइंग लिथो ऐसा, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा ऐसा बता सकते हो तो? इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है,
उसमें उधर एक्चुअली 2 ही मीडियम अवेलेबल था उस टाइम। ऑलराइट। और कर सकते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिथो प्रेस नहीं है हमारे पास। ठीक है। और स्क्रीन प्रिंटिंग भी वो सब सेटअप चाहिए था। मोस्टली लोग हमारा सीनियर्स सब वुडकट करता था, वो ही उनको फॉलो करके और उनसे इंस्पिरेशन लेके ओके। वुडकट छोटा छोटा करके और वो लोग बड़ा बनाते थे। मतलब प्रताप मोड़ी और सोगरा दीदी, ये जगदीश भाई, ये सब लोग बड़ा बड़ा वुडकट कर देते हैं। बट वो सब पता चलता है ना सीनियर्स का, तो उनका इंस्पिरेशन हमको मिलके फिर वुडकट थोड़ा साइज बढ़ाना है वो सब लाइक ये सब किया था। और एचिंग भी साथ में करते थे, वो भी सीख के करते थे। बट पता नहीं वुडकट में ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे पहले से। सो ये जब मुझे बड़ौदा सीट मिला है ना, उस टाइम मुझे वो क्वेश्चन पूछा गया था कि पेपर में, तो लिथो रोलर आया, वो इमेज आया, ये कौन सी रोलर है सब पूछा गया था। मैं इसका सीडी लिखा था। तो इंटरव्यू में पूछा, वो निकाल के गलत क्यों लिखा, तुमको पता नहीं है लिथोग्राफी? सॉरी सर, मुझे पता नहीं, कभी देखा नहीं है रोलर को, हमारे पास लिथो नहीं है। तो इधर करेगा लिथो? हाँ हाँ सीधे इधर करूँगा। फिर 1 साल लिथो ही किया, फिर वो बोला। ओके, सो दैट इज व्हेन यू आर जॉइनिंग फॉर द मास्टर्स। ओके, मास्टर का 1 साल पूरा तुमने लिथो का एक्सपीरियंस। ओके, सो हाउ वाज डिफरेंस, लाइक एक्सपीरियंस कैसे रहा? पत्थर को घिसना और ये सब काफी लेबरस है ना? लेबरस है, बट रिजल्ट आएगा ना तो वैसा बोल जाएंगे। नहीं, वो तो मैं समझा। लाइक काफी बार क्या हो जाता है, लाइक नाउ देयर सो मेनी अपडेटेड वर्जन ऑफ लाइक टेक्निक्स ना। अभी लिथो के जगह पे वो क्या है, वो शीट यूज करता है ना, फोटोग्राफी। हाँ, तो वो सब अलग अलग टेक्निक्स आ गए ना। देन लाइक सी वही है, मेरा इंटरेस्ट पहले वो इंटरेस्ट था। बाद में बीच में एचिंग शुरू किया था लिथो होने के बाद। फिर अभी जो काम कर रहा हूँ, तो वुडकट को काम को सब्जेक्ट को सबसे यूज़ कर रहा हूँ मैं। वो कुछ स्ट्रोक्स है, कुछ इफेक्ट्स है, वो इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है मुझे। मतलब सब चीज़ें में पॉसिबिलिटीज है। इवन आई डोंट वांट एनी प्रेस, इवन मैं घर पे बैठ के आराम से कर सकता हूँ। मुझे पहले से वो मीडियम को ज़्यादा ग्रिप है, उसको कैसे यूज़ करना है, तो और पॉसिबिलिटीज ज़्यादा मिल रहा है। जब तक वो पॉसिबिलिटीज मिल रहा है, ख़त्म ना हो जाता है, तब तक मैं कुछ ना कुछ ढूंढ के अलग से निकालते रहूँगा। क्योंकि लिथो एचिंग ये सब के लिए भी काफ़ी सारा सेटअप्स, प्रेस, ये सब रिक्वायरमेंट्स है ना। वेयर एज इन केस ऑफ वुड इज सो मच इजियर, लाइक एक्सेसिबल है वो मटेरियल, रूम पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। ओके, एंड सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द विजुअल लैंग्वेज। लाइक ओके, द material we understand, the methodology, because of the material, that methodology also comes hand in hand, right, साथ साथ जाता है। तो हम बात करेंगे अभी थोड़ा तुम्हारा विजुअल के एस्पेक्ट्स। विजुअल मतलब तुम्हारा जो काम के अंदर जिस तरह से तुम नरेशंस क्रिएट कर रहे हो, तो वो कहाँ से आ रहा है? लाइक इफ यू सी आवर माय बैचलर वर्क, वो मोस्टली स्केच बेस्ड और कंपोजिंग बेस्ड होता है। ओके, लाइक मेरा गाँव से कुछ सीन्स लाइक फेस्टिवल्स एंड उधर का जालरपेटा बोल के एक क्या जालरपेटा। व्हाट डज जालरपेटा मीन? वो मर्चेंट होता है ना, ये मच्छी पकड़ता है। ओके, वो लोग ज़्यादा रहते हैं उधर, द फिशरमैन। हाँ, उधर जाके हम स्केचिंग करते हैं। मोस्टली योर प्लेस इज नियर बाय द कोस्टल एरिया? यस, हाँ। ओह नाइस। विशाखापट्टनम में। ओह, मोस्टली स्टूडेंट्स पहले स्केचिंग सीखने के लिए उधर ही जाते हैं, ज़्यादा स्केचेस मिलते हैं उधर। ओके, तो वो सब सीन्स और मेरा गांव का सीन्स, वो सब कंपोजिशन वाइज ये सब रहता है उसमें। ओके, और फिर बड़ौदा आने के बाद बहुत कंफ्यूज हो गया था मैं एक्चुअली। उससे पहले वो ओनली टेक्निकल चीज़ में ध्यान देते थे। ओके, ओके, सब्जेक्ट के बारे में और थीम के बारे में ये सब ज़्यादा सोचते नहीं थे। बट इधर आने के बाद वो सब लोग उधर अच्छा ही करता था। एक्चुअली इधर आने के बाद सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा थीम क्या है, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन।
सो क्या स्पेशली वो जरूरत है? मैं हाँ पूछ रहा हूँ वही ऐसे, बोल रहा मैं हूँ, पूछ वो रहा हूँ। सब क्वेश्चंस आने के बाद कंफ्यूज हो गया था। अच्छा मतलब आर्टिस्ट मतलब एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कुछ थीम होना चाहिए, पर्टिकुलरली एक स्टाइल होना चाहिए, ये सब इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर कंफ्यूज हो गया। फिर इधर सारे टीचर्स ने थोड़ा सजेशन दिया। देवरा सर ने बोला तू तुमको बैचलर्स काम देख के तुमको इधर काम का एडमिशन मिला तो वही कंटिन्यू करो, तुमको इतना कंफ्यूजन या होने की जरूरत नहीं है। या सो मैं वही किया था, उधर का फिर से कुछ यूज़ करके इमेज क्योंकि काफ़ी बार तो मुझे लगता है कि हम अनकॉन्शियसली जो चीज़ करता है ना, वो अपने आप जो जिस तरह से निकलता है ना, दैट इन इटसेल्फ इज अ कॉम्पोजिशन या एक सब्जेक्ट है। अब काफ़ी बार क्या है कि हम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, तो इसलिए हमको बाद में एक्सप्लेन करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि ये क्यों किया, अरे पता नहीं यार ये तो आ गया था काम, ऐसे हो जाता है ना वो लाइक। आता है अनकॉन्शियसली आता है हमको, कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस होता है, वो आता है कॉन्शियसली नहीं आता बट अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं से आता है, इंस्पायर होता है कि एक्सपीरियंस होता है वो हमारा हाथ से हाथ का थ्रू ही निकलता है ना। यस। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है बट वो कैन अंडरस्टैंड नाउ बट वो टाइम पे दैट इज सिचुएशन। तो बड़ौदा आके बड़ौदा का खाना वाना कैसे लगा यार? बड़ा पाव, पहले सेव उसल। पहले थोड़ा खराब सिचुएशन था। फर्स्ट ईयर अच्छे से चले गया, मेरा पास पैसा था कुछ अवार्ड से थोड़ा पैसा आया तो फीस वीस चलाया, घर पे थोड़ा पैसा दिया, फिर मैं भी अच्छे से सब कुछ मटेरियल के साथ मेरा पहले से हो गया। दूसरे साल में थोड़ा स्ट्रगल हुआ, सो पैसा का थोड़ा स्ट्रगल है बट दैट इज नॉट दैट मच स्ट्रगल। तो वो फूड का थ्रू स्ट्रगल गया ना, उसके ऊपर काम करता था, जो भी ये स्ट्रगल चलता था उसका उसको लेके काम करता था। फिर उसके बाद कोरोना आ गया और डिस्प्ले नहीं हुआ, तो वही स्ट्रगल मतलब बॉडी डिजायर भी एक होता है ना स्ट्रगल के थ्रू, वो भी काम को अंदर खींच के काम किया था। तो सम सिमिलरिटीज ढूंढ के ये स्ट्रगल पूरा मुझे ये मेरा रूट्स पे लेके गया था। मतलब मेरा 18 इयर्स जो भी लाइफ था पहले मेरा गांव में था, वो लाइफ को लीड किया है ये स्ट्रगल। सो तब मुझे एक रियलाइजेशन आया, एक क्लैरिफिकेशन मिला व्हाट आई हैव टू डू। सो उसको ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस किया, स्केचेस किया, फिर उसको काम पे धीरे धीरे लेके आया। सो करंटली डीलिंग विद दैट। या तो मतलब काफ़ी सारे तुम्हारा काम में मुझे दिख रहा है कि लाइक इट्स द सब्जेक्ट हैज़ अ लॉट ऑफ रिलेशन टू फार्मिंग। तो ये कहाँ से आ रहा है? लाइक इज इट बिकॉज you were also taking part in the that sort of environment, या because तुम वो जगह पे से हो, वही दिखता था तो उसकी वजह से है? क्या है लाइक? क्योंकि कभी कभी हम चूज़ करता है ना, इतना सारा चीज़ है, तुम्हारा घर के आसपास भी बहुत सारा चीज़ है, तो बहुत सारा चीज़ में से तुम कुछ कुछ सेलेक्ट कर रहे हो, एंड इज इट लाइक यू आर कनेक्टिंग विद दैट थिंग या कैसा है लाइक? Yeah, actually belongs to a farmer's house. Okay. Where my father is doing the same. Okay. Still. मेरा फादर ने कैनेट फार्मर है, सो मैं उधर ही पैदा हुआ, उधर ही ग्रो हुआ, वो सब चीज़ देखते रहा। वो एक रिलेशन कैसा होता है, मतलब फार्मर्स सबका साथ एंड लैंडलॉर्ड का साथ, ये फार्मर्स का रिलेशन क्या होता है, उनका लाइफस्टाइल क्या होता है, वो रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, ये ट्रेडिशंस उनको लाइवलीहुड का कितना उनका ऊपर कितना वो उनका लाइफ में कैसा वो इम्पैक्ट करता है। सो ये सब चीज़ देखे हुआ, मतलब मैं ऑलरेडी देखा है। सो ये सब काफ़ी सारे चीज़ मैं एक्सपीरियंस किया है। सो दैट इज़ द रीज़न एक्चुअली।
एंड व्हाट अबाउट लाइक अभी बड़ौदा आने के बाद नाउ यू आर नॉट नो लॉन्गर लाइक कनेक्टेड विद लाइक है फार्म वार्म वगैरह जगह है इधर बट लाइक इट्स अ सिटी नो मोर ऑफ अ सिटी सॉर्ट ऑफ सेटिंग तो जब घर वापस जाते हो तो तुझे कैसा लगता है लाइक मैं इधर काम करता हूँ बट स्टिल ऑलवेज मैं घर का उधर का ही सोचता हूँ, उधर का बात पता चलता रहता है उधर क्या हो रहा है। इवन शाम को फ़ोन किया था, मेरा माँ ने बोल दिया ठीक है आज इतना लोग आया, राइस हो गया, फिर उसको पेस्टिसाइड्स डालना पड़ता है, इतना इतना पैसा होता है, फिर ये सब चीज़ होते रहती है। ओके तो मैं कल रात को भी बात किया और क्या क्या हो रहा है सब, सो ध्यान उधर रहता है। वही ये अभी जो ये काम डीलिंग कर रहा हूँ इसका साथ, तो उधर का ध्यान थोड़ा ज़्यादा हो गया था। ओके मैं उधर भी काम कर सकता बट आई कांट डू, उधर काम करके मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता है, बहुत दूर हो जाएगा, मन भी चेंज हो जाएगा। अपना जैसे लोगों के साथ रहना भी बहुत ज़रूरी है ना लाइक स्पेशली फॉर एन आर्टिस्ट आई बिलीव लाइक टू बी like how this residency space is providing you know that environment with other artists so that you know कुछ thoughts आता है तो बात कर सकता है you know there's lot of give and take sharing happening right तो वो थोड़ा विशाखापट्टनम साइड पे थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, ऐसा कुछ है बोल रहे हो क्या? हाँ, उधर के फिर कॉलेज में भी रिविजिट करते हो तुम? अभी कम किया बट पहले इधर एडमिशन हुआ ना उसके बाद कभी भी मैं गाँव जाता हूँ ना वो कॉलेज को तो हो जाता हूँ, उधर रुक के जाता था, पर अभी डायरेक्ट गाँव ही जाता हूँ। मेरा जूनियर्स नहीं है, फिर नया नया हो जाता है, कभी कभी सर को मिलने जाता हूँ, फिर मिलके आ जाता हूँ। So how is your interaction with your sirs now? क्या बोलता है वो लोग? एक्चुअली वो लोग फ़ोन करता है कि क्या कर रहा है, काम कैसे चल रहा है, मैं भी सर को फ़ोन करता हूँ, सर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो पूछ बात होती है, ऐसा थोड़ा बहुत बात होती है। So इधर जब फाइनल डिस्प्ले हुआ था तुम्हारा लाइक मास्टर फाइनल डिस्प्ले नहीं हुआ, नहीं वो कोविड का वो 2020 वाला ग्रुप है? यस ओ और एक महीने में डिस्प्ले था, एक महीने से पहले लॉकडाउन हो गया, फिर had to go. you were in that. So then how did you did you get another chance like once the pandemic was done तो उसके बाद तुझे chances मिला अपना काम को शोकेस करने के लिए कहीं पे? या मिला उसके बारे में भी थोड़ा शेयर कीजिए ना। मैं लॉकडाउन हुआ फिर हॉस्टल में काम लेके गया था, काम बीच में था। ओके यू आर स्टेइंग इन हॉस्टल? हाँ स्टेइंग। ओके सो अजय कन्वर सर ने मुझे थोड़ा हेल्प किया, वो टीवी रूम दिलाया, टीवी रूम है ना, वो टीवी रूम दिलाया, अच्छे से काम किया एक महीना। वो बोल रहा था अगर तुमको कुछ फूड का प्रॉब्लम हो तो बता, उस टाइम बोला था ना शक्ल का, तो फ्री में अरेंज किया खाना, मेरा अकेला नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया था, फ्री में खिलाया था। तो उसके बाद मैं घर पे गया, फिर एक महीना क्वारंटाइन में चले गया, दूसरा महीना घर पे चले गया था, फिर इधर आने के भेजने के लिए वो लोग डरते था। ओके तो हैदराबाद गया, एक महीना रहा, फिर मेरे से नहीं हो रहा था, तो मैं तो बड़ौदा जाना है, बड़ौदा वापस बुला रहे हैं पड़ेगा काम तो करना है, काम तो नहीं हो रहा है, सब कुछ इधर था। तो जब मेरा एक सीनियर को फ़ोन किया, वो रूम वगैरह दिलाया, तो मैं आ गया। वो उस टाइम स्पेस रेजिडेंसी हमारा ऑनलाइन में चल रहा था। ओके तो ऑफलाइन हो गया, फिर उधर डिस्प्ले का चांस मिला स्पेस का। वेयर वाज दिस? हमारा बड़ौदा स्पेस स्टूडियो। ओके स्पेस स्टूडियो, ओके स्पेस स्टूडियो में ये होता है। ओके ये अप्रैल में आया था, बट ऑनलाइन चलते चलते फिर 2.5 महीना मैं उधर स्पेंड किया। ओके अच्छा है, वो काफ़ी सारे स्पेशलिटीज फूड भी रखते थे वो लोग एक टाइम का। सो अभी तक तो यार आपने काफ़ी सारे जगह पे भी आई एम श्योर लाइक यू हैव एग्जिबिटेड योर वर्क, है ना? क्योंकि काफ़ी सारे बार ऐसा हो जाता है ना, स्टूडेंट्स को या प्रैक्टिशनर्स को भी काफ़ी बार ऐसा चैलेंजिंग होता है, लाइक उनको भी डर लगता है कि यार मैं ये प्रपोजल इस तरीक़ा से ठीक से लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, या सेलेक्ट होगा कि नहीं। जब ईमेल आता है ना वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू तो बहुत सारे जो आर्टिस्ट अप्लाई किए उनको थोड़ा ऐसा हो जाता ना, तो लाइक बट लाइक इन योर केस लाइक तुम काफ़ी सारी जगह पे आई थिंक यू आर एग्जिबिटिंग ऑल्सो, यू आर डूइंग वेल, सो हाउ हैज़ दैट बीन लाइक? या पहले से मुझे
अवार्ड से हेल्प होता था। Okay. बैचलर्स फाइनल ईयर में एक अवार्ड मिला ओके बनाने का। नाइस। और उसके बाद ये एग्जीबिशन तो ये स्पेस से ही शुरू हुआ, उधर ही अच्छा मौका मिला बड़ौदा स्पेस स्टूडियो। हाउ वाज द इंटरेक्शन देयर, लाइक स्पेस स्टूडियो में किस तरीके से, मतलब कोई आके किस तरह का सवाल पूछा जो तुझे एकदम ऐसा लगा कि वो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ? या सब लोग जो भी है मुझे उस टाइम सब लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हारा स्किल है, तुमको वो कैसे यूटिलाइज करना है तुमको, तो Okay. क्या सोचते हो उसके बारे में, वो सब क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं पढ़ने के समय से लेके वो उस टाइम तक। और मेंटरशिप भी दिया गया वो सेशन करने से। और डिस्प्ले अच्छा हुआ, काफ़ी सारे लोग आया, काम के बारे में बात किया। तो ये इंटरेक्शन में ज़्यादा बहुत कुछ पता चलता है ना, वो एक ही नहीं है, रेजिडेंसीज, वर्कशॉप्स, कैंप्स, ये सब में जाता है, एक दूसरे के साथ बातचीत होती है, कम्युनिकेशन मिलता है। और एक बात मिलती है कि कौन सी साइड जाना है, कि किस तरफ से सोचना है, हमारा काम को कैसे लेके जाना है आगे। सो तुम्हारा काम फिर क्या लाइक ड्राइंग बेस्ड है क्या? तुम पहले इस चीज़ को ड्राइंग करते हो एंड देन इट ग्रोज इनटू लाइक सम कॉम्पोजिशंस, और या तुम्हारा ऐसे फिक्स होता है कि नहीं मैं एक फ़ोटोग्राफ खींच रहा हूँ, वो फोटोग्राफ को रेफरेंस लेके मैं काम करूँगा? किस तरीके से तुम प्रोसेस करते हो? नहीं, बेसमेंट तो यही है, पहले हम ड्राइंग करते हैं, उसके बाद उसको डेवलप करते हैं प्रिंट मेकिंग में, और बेसमेंट तो वही है। बट लेटर वो धीरे धीरे में मेरा ड्राइंग बनाते रहा, कुछ टाइम के बाद वो ड्राइंग डायरेक्ट उधर ही सीधा बोर्ड पे विद द बोर्ड बोर्ड पे ड्राइंग करता था। फिर इतना छोटा छोटा डिटेल्स को हम ड्राइंग करने का जरूरी नहीं है। हाँ। और एक आउट फॉर्म ऐसा स्केच करके उसको डायरेक्ट टूल से कर सकते हैं। सो टूल इज लाइक पेंसिल, हम खेल सकते हैं कैसे भी। Okay. So listeners, this is the first session of our conversation. Stay tuned for the second session because we are going to dive into his work and see the kind of visuals that he's been creating, like from bachelor to current period, right? And he'll also give us more ideas about the subjects and the visual aspects of his work. Alright, till then we are going to take a small break. Cheers.